ફેબ્રુઆરી 2020 આમ આદમી પાર્ટી પર ભરોસો મૂકી દિલ્હીની જનતાએ તેમને અઢળક પ્રેમ આપ્યો। 70માંથી 62 બેઠકો આમ આદમી પાર્ટીને આપી કેજરીવાલને દિલ્હીની સત્તા સોંપી। ફરી એકવાર દિલ્હીનો ખ્યાલ રાખવાનું વચન આપી ગાદીએ બેઠેલા આમ આદમી પાર્ટીના કેજરીવાલે દિલ્હીનો કેવો ખ્યાલ રાખ્યો, દિલ્હીનો કેટલો વિકાસ કર્યો, લોકોની એવી કેટલી સમસ્યાઓ હલ કરી, કેટલી આજે પણ ઊભી છે, આ તમામ બાબતોનો ચિતાર મેળવવાનો અમે પ્રયત્ન કર્યો। દિલ્હીની ગલીઓમાં ફરી કેવા છે દિલ્હીના હાલ એ જાણવાનો પ્રયત્ન થયો। દિલ્હીના હાલ હવે બેહાલ છે। દરેક મુદ્દે આમ આદમી પાર્ટીની સરકારે લોકોને છેતર્યા હોવાનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે। અમારી વિશેષ રજૂઆત દિલવાડાની દિલ્હીના હાલ બેહાલમાં અમે તમને બતાવીશું આખી દિલ્હીનો તલસ્પર્શી ચિતાર। आओ जानिए केवा छे दिल्लीना हाल बेहाल। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। दोस्तों, मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। ये दिल्ली के हर उस परिवार की जीत है जिसने मुझे अपना बेटा समझ के, जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के हमें जबरदस्त समर्थन दिया, इतना वोट दिया। ये हर उस परिवार की जीत है जिनको अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके लोगों का दिल्ली में अस्पतालों में अच्छा इलाज होने लगा है। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है। सांभळ्युं शुं कही रह्या छे दिल्लीना मुख्यमंत्री? लोकोने सुख सुविधा आपवाना नामे मोटी मोटी वातो करी फरी सरकारमां बैठेली आम आदमी पार्टीए लोकोनी केटली सेवा करी तेनुं पण सर्वैयो काढवुं पड़े। के न्यूज़ द्वारा प्रयास करायो दिल्लीने जाणवानो। शुं कही रह्या छे दिल्लीवासीओ ए पण बतावीशुं, परंतु पहेला थोडुं दिल्लीने समजवानो प्रयत्न करीए।
ઇન્ડિયા ગેટ, લાલ કિલ્લો, પહોળા રોડ, કનોટ પેલેસ, ગગનચુંબી ઇમારતો, આપણે આ દિલ્હી જ જોયું છે, પણ એક દિલ્હી બીજું પણ છે જે બતાવવાનો અમે તમને પ્રયાસ કરીશું. આ એ દિલ્હી છે જે ખરેખર આલિશાન હોવું જોઈએ, પણ યોગ્ય શાસનકર્તાની જગ્યાએ બોલ બચ્ચન સરકાર આવે તો શું થાય એનો બોલતો પુરાવો એટલે દિલ્હી. જનકપુરી, સીતાપુરી, ઇન્દ્રલોક, ત્રિલોકપુરી આવા સરસ નામોવાળી દિલ્હીના આજે હાલ બેહાલ છે. ઐતિહાસિક, ખૂબ જ રૂપાળી અને દિલવાડાની નગરી આજે કલ્પાંત કરતી હોય એવું લાગે છે. દેશની રાજધાની હોવાને નાતે દુનિયાની કોઈ એવી વ્યક્તિ નહીં હોય જે દિલ્હીના નામથી અપરિચિત હોય. આજે પણ દિલ્હી આવતી વ્યક્તિ અગર ચાવડી બજારમાં ચક્કર ન મારે એવું બને જ કઈ રીતે? દિલ્હી જતા દરેક વ્યક્તિને એનો દીકરો કે દીકરી એકવાર એવું ચોક્કસ કહે કે પપ્પા પહાડગંજ જજો અને મારા માટે કોમિક્સની ઘણી બધી ચોપડીઓ લાવજો. તો ગૃહિણીની પણ ડિમાન્ડ હોય કે સદર બજાર તો જજો જ, અને હું લિસ્ટ આપું એ સામાન તો લાવવો જ પડશે. તો ચાંદની ચોકની તો વાત જ શું કરવાની? આવી દિલ્હીની સુરત હવે બગડતી જતી હોય એમ લાગે છે. વર્ષ 2013 એક એવો નેતા ઉભરીને આવ્યો કે તેના પ્રભાવમાં બધા અંજાઈ ગયા. નામ અરવિંદ કેજરીવાલ. અન્ના આંદોલનથી ઉભરાયેલું એક એવું નામ જે નામે દિલ્હીવાળાના દિલ જીતી લીધા. આમ આદમીની વાતો કરી આ વ્યક્તિએ લોકો ઉપર એવો તો જાદુ કર્યો કે લોકોએ ખોબલે ખોબલે મત આપી આમ આદમીને દિલ્હીની ધુરા સોંપી દીધી. પણ પછી ફક્ત વાતોના વડા કરવાને કારણે દિલ્હી થઈ ગઈ કચરાના ઢગ સમાન. આજે કોઈ વ્યક્તિ દિલ્હીની ગલીઓમાં ચક્કર મારે તો નરી ગંદકીથી ઉભરાતી ગટરો અને લટકતા વાયર જોવા મળે. બિજલી હાફ ઓર પાણી માફ જેવા જુમલા થકી લોકોને ભરમાવી વોટ બટોરતા કેજરીવાલ અને તેના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ આજે લોકોની વચ્ચેથી જાણે ગાયબ હોય એવું લાગે છે. જે વર્લ્ડ ક્લાસ શિક્ષણ મોડેલની વાતો કરી કેજરીવાલ સરકાર બીજા રાજ્યોને લલકારે છે તે મોડેલમાં પણ પોલમપોલ છે તો મોહલ્લા ક્લિનિક માત્ર મજાક. इस वक्त हमारे साथ अशोक ठाकुर जी हैं, नेफेड के डायरेक्टर हैं सर. सोशल इश्यूज से भी काफ़ी जुड़े रहते हैं, सोशल मुद्दों पे काफ़ी बात करते हैं, एक्टिवली अपनी बात रखते हैं. पीस अवॉर्डी भी हैं और कम्युनिटीज़ के बीच में पीस बनाना, शांति वार्ता में भी सर का हाथ काफ़ी रहता है. सर मैं आपसे कुछ मुद्दों पे, सोशल दिल्ली के मुद्दों पे बात करना चाहूँगी. जैसे आप जानते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सोशली मुद्दों को उन्होंने बहुत उठाया है शुरुआत से, चाहे सत्ता में आने से लेकर और अभी तक. आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी पिछड़ी है और क्या क्या उनके ड्रॉबैक्स हैं जो आज उन्हें फ्री पानी, बिजली, इन सब को लेकर बात कर रही हैं? मानते हैं उनका वो स्ट्रेंथ है उस चीज़ की, लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहाँ वो फेल कर रही है, जहाँ वो लैक कर रही है, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ शायद बहुत आगे है. नहीं देखिए, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस दिल्ली सरकार के साथ प्याज वाले इशू पर आया था और मैं समझता हूँ जितना भ्रष्ट सरकार मैंने वो देखी है शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. हमने उनको 2500 मीट्रिक टन ऑनियन दिया था एंड दे प्रोमिस्ड अस टू डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू पीडीए सिस्टम, लेकिन वो अपने एमएलएज के थ्रू उन्होंने उसको बांट भी दिया और एक बंदर बांट अपने कार्यकर्ताओं के बीच में करी, जो अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला था. तो पहली बार मेरा उनके साथ आया इशू. और दूसरी बार मुझे जब कोरोना काल के अंदर जब दाल का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया तो 2 महीने तक दिल्ली सरकार ने दाल गरीब लोगों की रोक के रखी, जिसके कारण लाखों लोगों को यहाँ भूख के डर से पलायन होना पड़ा, जो राशन यहाँ पर रोका. और उसके बाद जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हुआ, जो खाना दोपहर को दिया गया, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ. ऐसा खाना लोगों को बांटा गया स्कूलों के माध्यम से जो भारत सरकार के माध्यम से उनको मिला था और स्टेट रिलीफ फंड के तहत मिला था. उसको इस तरह बांटा कि जानवर भी उस खाने को खा नहीं सकते, इंसान की तो आप छोड़िए, इतना भारी. और इनका एक विधायक उसके कारण जेल में भी, एसडीएम ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके ऊपर भ्रष्टाचार करने के लिए दबाव बनाया था. तो 2-3 बार मुझे इस सरकार के साथ जब मेरा मौका आया डील करने का तो मुझे लगा कि वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट है और ये ईमानदारी के नाम पर वोट मांग कर आए थे और मेरा अनुभव आया है कि ये मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट है. વિસ્તારોની સ્થિતિ પણ તમને બતાવીશું, પરંતુ એ પહેલા જાહેર જીવન સાથે સંકળાયેલી વ્યક્તિઓ સરકાર વિશે શું માને છે તે જાણવું પણ અતિ મહત્વનું છે. અશોક ઠાકુર કે જેઓ સમાજ સેવા સાથે સંકળાયેલા છે અને લોકોની સેવા અર્થે ડુંગળી વહેંચવા જ્યારે સરકારને આપી
તેનું યોગ્ય વિતરણ થવાને બદલે પોતાના લોકોમાં બંદરબાટ કરી તેનાથી અશોક ઠાકુર વ્યથિત છે. મનીષ સિસોદિયા કે જેઓ દિલ્હીના ડેપ્યુટી સીએમ હોવાની સાથે અનેક મંત્રાલયોનો કારભાર પણ સંભાળે છે, તેમના જ વિસ્તારના રવિ નેગી સરકારથી ખુશ નથી. સાથે જ તેઓ સરકારની કાર્યપદ્ધતિ ઉપર અનેક સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે અન્ના આંદોલનની સૌથી મોટી માગણી હતી લોકપાલ તો જોઈએ જ, પરંતુ કેજરીવાલ સરકારમાં આવતાની સાથે જ એ વાયદો ભૂલી ગયા. 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया कि कुछ नए राजनीतिक चेहरे जो दिल्ली की राजनीति में थे वो उभर के आए. उनमें से एक थे ये दिल्ली स्टेट के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बदलाव की एक नई आंधी के रूप में आए और लोगों ने उन पे उस वक्त और आज भी भरोसा जताया. आज हम दिल्ली के विनोद नगर इलाके में हैं. मेरा नाम अंजलि पोखरियाल है और आज हम उन चुनावी वादों की थोड़ी हकीकत टटोलने की कोशिश करेंगे. उनकी जो सच्चाई है, चाहे मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इन सब को लेकर जो उनके खोखले वादे किए गए उनकी हकीकत जानेंगे. हमारे साथ रवि नेगी जी है, विनोद नगर में रहते हैं और काफ़ी टाइम से यहाँ ग्राउंड लेवल पे जो मुद्दे हैं उनके बारे में खुलकर बात करते हैं, उनके मुद्दों की चर्चा करते हैं. इनसे थोड़ा उन जो धूल लगी है उन मुद्दों पर थोड़ा सा हटाने की कोशिश करें. विनोद जी, स्वागत है आपका के न्यूज़ में. धन्यवाद. आपने भी देखा होगा दिल्ली की राजनीति को बदलते हुए शीला दीक्षित के बाद जो एक अन्ना हजारे का आंदोलन आया, बहुत बड़ी आंधी और बदलाव की लेकर आए. उसमें अरविंद केजरीवाल एक नया उभरता हुआ चेहरा लगे, लोगों को एक उम्मीद लगी बदलाव की. क्या वो उम्मीद आज लोगों के मन में है और किस हद तक वो उम्मीद कम होती जा रही है? जो ये अन्ना मुहिम से ये लोग जो उभर के आए और उसके बाद जो क्रांति, ये जो चाहते थे कि क्रांति लाएंगे देश में, एक लोकपाल के जरिए आए. और आपको याद होगा जिस लोकपाल के लिए इन्होंने रामलीला मैदान पूरा घेर रखा था और पूरा कई दिन तक आंदोलन चला और कई आम लोगों ने भी उसमें लोग गए, पर उससे लोग जैसे ये सरकार में आए तो उस लोकपाल को ये भूल गए. आज तक लोकपाल आया नहीं है. और दूसरा, जिस शीला के बड़े बड़े चिट्ठे लेके, कागज लेके मंचों में घूमते थे कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे शीला को हम जेल में भेजेंगे, शीला के मंत्री को जेल में भेजेंगे, हम ये करेंगे. तो मुझे लगता है जैसे ही सरकार में आए 2015 में सारी चीज़ गौन हो गई. और 15 और याद होगा आपको 2013 में इन्होंने कहा कि जब भी हम सरकार बनाएंगे कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, पर 2013 में इनको कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन लेके सरकार बनानी पड़ी. तो इस तरह के झूठ की राजनीति लेकर आए थे. जिन मुद्दों में ये बात करते थे वो मुद्दे आज जमीन धरातल में नहीं है. बिजली हाफ, पानी माफ के जरिए ये आए, पर आज पानी की इतनी बुरी हालत है. आप कॉलोनियों में जाओगे, जो इन्होंने पानी का वादा करा था, हम साफ पानी देंगे, एक स्वच्छ जल देंगे, एक जो गंगा वाटर, जो ग्राउंड जीरो में गंगा वाटर आता था यहाँ पे, वो गंगा वाटर की सप्लाई बंद हो चुकी है. पानी गंदा और नाली का तब्दील हो चुका है और घरों में गंदा पानी आता है. लोग परेशान है, हताश है. लोगों को पानी का बिल माफ नहीं चाहिए, लोगों को साफ पानी चाहिए. लोगों के जीवन में जीना दुभर हो चुका है. और जिस बिजली की ये बात करते हैं उस बिजली में कोई व्यवस्था नहीं है. किसी का 20,000 का बिल आता है तो किसी का 0 आता है, किसी का 30,000 का आता है तो किसी का 500 रुपये का आता है. कोई इसमें कुछ नहीं है. और दूसरा मैं ये बोलूँगा, बिजली जब हम मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं है दिल्ली, आप कहीं ना कहीं सब्सिडी जो दे रहे हैं बिजली में, कहीं ना कहीं वो हमारे टैक्स पे पैसों का है, कोई आप अपनी जेब से नहीं दे रहे. आज दिल्ली इतने घाटे में चल रही है. डीटीसी की बात करेंगे, डीटीसी बंद होने के कगार में, जल बोर्ड बंद होने के कगार में. 1305 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड में है, मतलब घाटे में. और डीटीसी 2010 के बाद एक भी डीटीसी नई बसें इन्होंने डाली नहीं. आज डीटीसी बंद होने के कगार में जगह जगह कॉमनवेल्थ के टाइम में जो बसें आई थी 2010 में, जब शीला जी की सरकार थी, वही बसें दिल्ली की जनता को ढो रही है. उस पर आपने महिलाओं के लिए फ्री कर दी, पर फ्री के साथ पर बसें बदली नहीं. जगह जगह बसें जल जाती हैं, आग लग जाती है बसों में, लोग मर जाते हैं. पर ये सरकार सिर्फ लोगों को झूठ बोलने का काम करा. 500 नए, इन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे 500 नए स्कूल खोलेंगे, 500 नए कॉलेज खोलेंगे. आप मुझे एक दिल्ली में एक भी कोई बता दे कि एक भी नया स्कूल खोला है इन्होंने? कोई नया स्कूल नहीं, कोई नया कॉलेज नहीं. इन्होंने कहा हम वाईफाई देंगे, ये देंगे. वाईफाई के वादे सारे झूठे निकले. इन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे. सीसीटीवी कैमरे इन्होंने जरूर लगाए, पर जब दिल्ली में दंगे होते हैं सीसीटीवी कैमरों में फुटेज नहीं आती. तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं झूठ बोलने का काम इन्होंने करा, लोगों से झूठ बोला. કેજરીવાલ સરકાર પર ભ્રષ્ટાચારના પણ ગંભીર આરોપો लाग्યા છે. પોતાને ઈમાનદાર સરકાર ગણાવતા કેજરીવાલ પર મળતિયા સાથે મળી ભ્રષ્ટાચાર આચર્યો હોવાના અનેક આરોપો લાગી રહ્યા છે.
લોકો અને સામાજિક અગ્રણીઓ પણ ઈમાનદાર સરકારની બેઈમાની વર્ણવી રહ્યા છે. ડ્રેનેજ લાઇનના કામો હોય કે રોડ રસ્તાના કામો હોય, મળતિયા સાથે મિલાપ સરકાર કરી રહી હોવાનું પ્રજા જણાવી રહી છે. સાથે જ મહોલ્લા ક્લિનિક હોય કે પાણીનું બિલ માફ કરવાનું હોય, સરકાર ભ્રષ્ટ હોવાનું લોકો જણાવી રહ્યા છે. ત્યારે આવો જાણીએ અશોક ઠાકુર શું કહી રહ્યા છે ईमानदार सरकार विषय. देखिए, दिल्ली के अंदर अभी मुझे लगता है कि आप रिठाला जाकर आए हैं. आप जब विजय विहार जाएंगे, बुद्ध विहार जाएंगे, तो वहाँ पर दिल्ली सरकार ने सीवरेज के नाम पर जितना पानी का पाइप होता है उस साइज़ के पाइप डाले हैं. तो एक सीवरेज के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है दिल्ली के अंदर. आप विजय विहार में जाएंगे, पानी तो गंदा आता ही है, लेकिन उसकी निकासी का जो प्रबंधन है उसमें बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है. पानी की निकासी के लिए जो सीवरेज सिस्टम चाहिए वो नहीं डाला गया है, उसकी जगह पानी के साइज़ के पाइप डाल दिए हैं. हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि कैसे वो निकलेगा. तो मैंने जहाँ जहाँ भी इनको देखा है तो वहाँ मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ है. કેજરીવાલ સરકાર ઉપર ગંભીર આરોપ વોટની રાજનીતિના પણ લાગ્યા છે. મત વેડવવા એક સમુદાયને ગોળ અને બીજા સમુદાયને ખોળની નીતિ કેજરીવાલ સરકાર અપનાવતી હોવાના આરોપ લાગ્યા છે. એક સમયે શાંત સિટી ગણાતું દિલ્હી આજે દંગા શહેર તરીકે ઓળખાવા લાગ્યું છે. શહેરમાં હવે ધર્મના નામ પર તોફાનો આમ મનાતા જતા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. ત્યારે આરોપ એ પણ છે કે જેટલા પણ તોફાનો થયા તેમાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ અથવા કાર્યકર્તાઓની સંડોવણી સામે આવી છે. ત્યારે આ રીતે જો મત મેળવવા તુષ્ટિકરણની નીતિ અખત્યાર કરવામાં આવશે તો અન્ય પાર્ટી અને આમ આદમી પાર્ટીમાં ફરક શું રહ્યો? इस प्रकार दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, इनमें बिल्कुल जग जाहिर हो चुका है कि केजरीवाल जी की मंशा सिर्फ देशद्रोही पार्टी है और देश को तोड़ने की बात करती है. आज जितने भी दिल्ली में दंगे हुए, 3 दंगे हो चुके हैं दिल्ली में. जवाहरलाल जेएनयू में दंगा हुआ, इनका अमानतुल्लाह खान उसमें इन्वॉल्व था, इनका विधायक. उसके बाद जाफराबाद में दंगा हुआ, जाफराबाद में इनका पार्षद ताहिर हुसैन इन्वॉल्व था. ठीक है, आज जब दंगा जहांगीरपुरी में हुआ तो वहाँ इन्हीं का कार्यकर्ता अंसार इन्वॉल्व था. मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये दंगे जो होते हैं सिर्फ हिंदुओं के साथ गलत करने के लिए दंगे होते हैं. उसके बाद ये मजाक उड़ाते हैं हिंदुओं का. आपने केजरीवाल के बयान भी सुने होंगे विधानसभा में, जिस प्रकार उन्होंने बयान दिए. और वो उन बयान आपको बता दूँ, जब राम मंदिर बनता है, राम मंदिर के लिए केजरीवाल और सिसोदिया जी हमेशा कहते हैं कि राम मंदिर की जगह आप यूनिवर्सिटी बना दो, वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे. पर जब दिल्ली में हज हाउस है द्वारका में, उसके लिए 100 करोड़ रुपए ये सरकार देती है. आप एक तरफ राम मंदिर के लिए तो मना कर देते हैं, पर आप दिल्ली में हज हाउस बना रहे हैं 100 करोड़ का. एक तरफ आप मौलवी जो मुल्ला मौलवी जो मस्जिदों में होते हैं उनको 45,000 रुपये महीना दे रहे हो. जो मंदिरों में पुजारी हैं उनको क्यों नहीं देते आप? अभी सिसोदिया जी का हाल का बयान हाल में पेपर में आया था. जितने भी विधानसभा है दिल्ली में, 70 की 70 विधानसभाओं में एक उर्दू अकेडमी खोली जाएगी जिसमें इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा कि इस्लाम धर्म कितना महान था. मतलब आप संस्कृत सनातन धर्म जो हमारा 5,000 साल पुराना है उस धर्म के बारे में आप पढ़ाओ नहीं. ठीक है, आपके शांति दूत हैं. हम जब हनुमान जयंती की में शांतिपूर्वक अपनी यात्रा निकालें, उसमें आप पत्थर फेंक दो हमारे ऊपर. और पत्थर फेंकने के बाद ये अभी केजरीवाल जी ने कहा कि ये बीजेपी के गुंडे हैं. मतलब हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम बीजेपी के गुंडे हो गए. मतलब हर आदमी जो लाल कपड़े पहने वो बीजेपी का गुंडा हो गया. और जिसने पत्थर फेंका, जिसने बंदूक चलाई, अंसार, वो इनका आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था और जो आज कोर्ट में पेश हो गया, उसको जेल भी हो गई. और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ताहिर हुसैन दंगे में इन्वॉल्व था. बिल्कुल आज वो दंगा उसके ऊपर मतलब इन्वॉल्व था और पूरा कोर्ट ने भी मान लिया और सब कुछ हो गया उसमें. उसके बाद भी आपने ताहिर हुसैन के बारे में एक शब्द नहीं बोला. आपने बड़ी मुश्किल से उसको बाद में अभी 2 साल बाद उसको पार्टी से निकाला. जाफराबाद में दंगे हुए, कई हजार हिंदुओं को दुकानें जलाई गई, पर आपने एक बार भी नहीं बोला. आपने कहा वो भी बीजेपी करा रही है, कपिल मिश्रा करा रहे हैं. और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जेएनयू में अमानतुल्लाह खान, उसने बसें चलाई सीए के चक्कर में. जब सीए लागू दिल्ली में हो रहा था, इन्होंने भड़काया लोगों को, बसें चलाई, आगजनी कराई. उसमें भी सिसोदिया जी कहते हैं नहीं ये बसें तो दिल्ली पुलिस के लोग जला रहे थे, पर बाद में पता चला कि इनके विधायक के लोग जला रहे थे. मतलब ये लोग कुल मिला के एक कौम को खुश करने के लिए दूसरी कौम को दबाने का काम करते हैं. वो तो केंद्र सरकार यहाँ मौजूद है, तो इनकी दाल गलती नहीं है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों में उतरते हैं तो इसलिए इनकी दाल नहीं गलती. अगर ये इनका बस चले तो ये मेरे को लगता है कि सारी सुविधाएं यहाँ दिल्ली में मुसलमानों को देने के लिए तैयार हैं. इन्हें हिंदू से मतलब नहीं है. ये चाहते हैं कि सारी जो फैसिलिटीज हैं वो मुस्लिम लोगों को मिले. अभी कोरोना काल में रोहिंग्या मुसलमानों को 10,000 रुपये देने का काम ओखला में अमानतुल्लाह खान ने करा. एक तरफ हिंदू बेचारा
भूखा परेशान था। बिहार का हिंदू जहाँ यहाँ रह रहा था, उत्तराखंड का हिंदू रह रहा था, रात रात को भागना पड़ा उसे हमने बिहार में, साइकिल में भागना पड़ा बिहार लोगों को। पर यहाँ पर 10,000 रुपये इन्होंने अमरुल्लाह खान दिए, बांट रहा है, उनके तंबू लगा रहा है। और तो क्या मैं ये बात मानूं कि यहाँ की जो ये मौजूदा सरकार है वो एक समुदाय को खुश करके अपना वोट बैंक सुरक्षित करना चाहती है, ताकि आने वाले टाइम में कम से कम अगर हिंदू समुदाय उनको नहीं दे रहा तो दूसरा जो माइनॉरिटीज़ है उनको वोट देकर वो वापस सरकार में लेकर आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल यही है इनका बिल्कुल इनका एक एजेंडा है, सर्व हिंदुओं को टारगेट करना। अभी आपने देखा हो कश्मीर फाइल के जरिए कितना मजाक उड़ाया इन्होंने। दिल्ली विधानसभा में कश्मीर फाइल जो आज से 40 साल पहले जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई, जो उनके साथ रात की रात उनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा कश्मीरी हिंदू पंडितों का, उनका मजाक उड़ाया इन्होंने। इनका मुख्यमंत्री कहता है कि ये इस फिल्म को यूट्यूब में डाल दो, हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे। मतलब उसकी मजाक उड़ाते हैं, हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार हुआ उसका ये मजाक उड़ाते हैं दिल्ली में। मतलब इसका मतलब यही तो है कि ये सीधा सीधा टारगेट करते हैं दिल्ली में हिंदुओं को, और मुसलमानों को उनका पक्ष लेते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हिंदुओं के साथ इनको दिक्कत। એજ્યુકેશનના નામે બોલ બચ્ચન થયું છે। અરવિંદ કેજરીવાલ અને મનીષ સિસોદિયા જે રીતે વર્લ્ડ ક્લાસ એજ્યુકેશનના નામે જે દાવાઓ કરી રહ્યા છે તે તદ્દન ખોટા સાબિત થઈ રહ્યા હોય એવું લાગી રહ્યું છે। લોકોએ તો ગંભીર આરોપ કર્યા જ છે, પણ અશોક ઠાકુર અને રવિ નેગી જેવા સામાજિક અગ્રણીઓ પણ સરકારી કામકાજ અને શિક્ષણ વ્યવસ્થાથી ખુશ નથી, કારણ કે જે પ્રકારની વાતો સરકારે કરી છે તેવું ગ્રાઉન્ડ સ્તર પર કશું જ દેખાતું નથી। સ્કૂલો આસપાસ જે રીતે ગંદકીનું સામ્રાજ્ય છે તેના પરથી અંદરની હાલત કેવી હશે તેનો અંદાજ આવે છે। પોતાના કરતૂતો લોકો જાણી ન જાય તે માટે સ્કૂલોમાં કડક સિક્યુરિટી રાખવામાં આવી છે, તેથી સામાન્ય માણસ એ પણ નથી જાણી શકતો કે પોતાનું સંતાન કેવું શિક્ષણ મેળવી રહ્યું છે। સાથે જ સામાજિક અગ્રણીઓ જો સ્કૂલમાં પ્રવેશવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેમને પણ રોકવામાં આવે છે। તો મીડિયાને તો ત્યાં જવાની વાત જ ક્યાં કરવી। तो पहले जिस स्कूल की ये बात करते हैं कि हमने स्कूल में क्रांति लाई, मैंने आपको बताया कि एक भी नया स्कूल नहीं खुला पिछले 5 सालों में, 7 सालों में। और दूसरा जो स्कूल है सिर्फ बिल्डिंग चमकाई जा रही है, कुछ दलाल लोगों को काम दिया जा रहा है, और स्कूल की स्थिति इतनी खराब है 1024 स्कूलों में 824 स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। प्रिंसिपल जो हेड मास्टर होता है वो स्कूलों में नहीं है। 25,000 वैकेंसी है स्कूलों में, जो रिक्वायरमेंट है 25,000 वैकेंसियाँ नहीं है स्कूलों में, टीचर नहीं है, और जो गेस्ट टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनको इन्होंने निकाला। तो मैं शिक्षा के बारे में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप दिल्ली के जो टीचर्स हैं उनका आप दबाव देखिए, उनके ऊपर कितना दबाव है। एक सरकार जब ये कहती है कि आपको किसी भी हालत में बच्चे को पास करना है, तो वो बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, उसको आप पासिंग सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, लेकिन क्या उसका जो लेवल है एजुकेशन का, क्या वो उस शिक्षा से आगे कुछ जीवन में कर सकता है? अगर उसका आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है, और केवल टीचरों को दबाव डालकर रिजल्ट को ठीक करने के लिए जो ऊपरी आवरण जिसको बोलते हैं लीपा पोती वाला, वो करके जो है वो कर रहे हैं। और इसका आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों में स्कूल के अंदर जो है एडमिशन्स का लेवल है किस तरह कितना पलायन हुआ है, ये सब आप समझ सकते हैं इन सब बातों को। तो मुझे लगता है कि इस सरकार ने बहुत गड़बड़ करी। હવે વાત કરીએ વર્લ્ડ ક્લાસ હેલ્થ કેર અને મોહલ્લા ક્લિનિકની। મોહલ્લા ક્લિનિકની દુહાઈ લગભગ કેજરીવાલ જ્યાં જાય ત્યાં બધે જ આપે છે, પણ આ મોહલ્લા ક્લિનિકના નામે મોટા ભાગની જગ્યાએ ધુપ્પલ ચાલતું હોય એવું લાગે છે, જેના કારણે કેજરીવાલે અને આમ આદમી પાર્ટીએ સોશિયલ મીડિયામાં પણ ટ્રોલ થવું પડે છે। મોટી મોટી વાતો પણ અમલવારી ઝીરો હોય એવું દિલ્હીમાં લાગી રહ્યું છે, કારણ કે મોહલ્લા ક્લિનિકની જ્યારે સૌથી વધુ જરૂર કોરોના કાળમાં હતી ત્યારે ઘણી જગ્યાએ દશેરાએ જ ઘોડું ન દોડ્યું એવો ઘાટ સર્જાયો। કોરોના સમયે મોહલ્લા ક્લિનિક કામમાં નથી આવ્યા તેવો આરોપ લાગી રહ્યો છે। સાથે જ આરોપો તો એવા પણ લાગી રહ્યા છે કે મોટા ભાગના ક્લિનિક પર ડૉક્ટર ડિગ્રી ધરાવતા નથી। કેટલીક જગ્યાએ તો એવી પણ વાતો સામે આવી કે એક જ ક્લિનિક 2 વખત ગણાવવામાં આવ્યું છે। એનો મતલબ એવો થયો કે એક જ દવાખાનામાં 2 વખત ખર્ચા બતાવી રૂપિયા ખતવી અને ભ્રષ્ટાચાર થયો હોય એવું બની શકે।
मुद्दा जो उन्होंने बहुत तेजी से दिल्ली मॉडल, गुजरात मॉडल के साथ कंपैरिजन में दिल्ली मॉडल जो उन्होंने खड़ा करा वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर था। शिक्षा व्यवस्था की आपने हकीकत दिखाने की कोशिश करी, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हकीकत है इस विनोद नगर इलाके में। और जो मोहल्ला क्लिनिक, जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक एक आइडियल इन्होंने सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करी जिसमें डॉक्टर बिठाए, लेकिन आगे कई बार ऐसी RTI में खुलासे हुए हैं कि जो डॉक्टर है वो ट्रेन MBBS डॉक्टर्स नहीं है, वो कंपाउंडर लेवल के हैं जिनको थोड़ी बहुत बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम की दवाइयों की नॉलेज है और उस बेसिस पे वो लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। देखो 2 साल कोविड चला यहाँ पे 2020 से 2 साल कोविड चलने में मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद रहे, ताले लगे, एक डिस्प्रिन की गोली नहीं मिली उसमें। मतलब आपने मोहल्ला क्लिनिक किसके लिए खोले? हाई कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई। हाई कोर्ट ने इनसे पूछा जब आप इतने वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक आपने बनाए हैं तो इन कोरोना काल में दवाइयाँ क्यों नहीं मिली? तो इनके वकील ने उसमें दायर किया, उसने जवाब दिया ये सिर्फ कंटेनर हैं, लोहे के कंटेनर हैं 8x10 के 8x10 के, ये सिर्फ लोगों के लिए एक नॉर्मल दवाई देने के लिए। पर हाईकोर्ट ने पूछा इतनी बड़ी बड़ी आप बातें करते हैं, कोविड काल में आपके इनमें ताले लगे रहे, एक दवाई नहीं दी, तो किस काम का ये मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। और जो काम दिल्ली में जो काम हो रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य अपनी एक हमारी जो प्रधानमंत्री जी जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं वहाँ लोगों को लाभ मिलता है। इनका मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ दिखावा है, छल है और कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों को काम देने का, जो अपने कार्यकर्ताओं को रोजगार देने का एक धंधा इन्होंने बना रखा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कोविड काल में जग जाहिर है, लोगों को पता है इसका। और जब दिल्ली के अस्पतालों की बात करते हैं, दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को, रात लोगों को मरना पड़ा लोगों को, हजारों लोग मर गए, जिसका आंकड़ा इन्होंने छुपा के रखा। कई लाख लोग दिल्ली में मरे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो कोविड काल में इन्होंने कहा कि हमारे पास बेड की व्यवस्था है, ICU की व्यवस्था है, और अचानक जैसी कोविड ज़्यादा बढ़ा तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हमें केंद्र ऑक्सीजन नहीं दे रही, हमें केंद्र बेड नहीं दे रही। और कोरोना काल के अंदर सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली के लोगों को ज़रूरत थी तो मोहल्ला सभा की ज़रूरत थी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, सुविधा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी उसमें नेटवर्क की नाम ही नहीं था। एक SDM और एक DM जो है एक पूरे इलाके को कैसे मैनेज कर सकता था? उसमें मोहल्ला सभा के साथ कोऑर्डिनेट करके वो काम करना चाहिए था। लेकिन जिस मोहल्ला सभा के ऊपर किताब लिखी थी वो मोहल्ला सभा और मोहल्ला क्लिनिक नदारत थे, वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। और लोग जो है ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, लोग दर की ठोकरें खा रहे थे, लोगों को कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना है। और इसके कारण मैं समझता हूँ कि हज़ारों लोग जो हैं केवल मिसमैनेजमेंट की वजह से जो मौत के मुंह में समा गए। अगर उनको टाइमली सरकार जो है उनको केयर करती और उनको भोजन, राशन, पानी और केयर होती, कोरोना से कम लोग मरे हैं। हॉस्पिटलों के अंदर मिसमैनेजमेंट से, और उनको एक पेशेंट को जो चाहिए होता है हॉस्पिटल के अंदर केयर की ज़रूरत होती है, उसको खाना चाहिए होता है बीमार आदमी को, अगर उसकी केयर नहीं होगी तो वो वैसे ही सर्वाइव नहीं करेगा। तो दिल्ली सरकार जो है उसमें पूरी तरह से उसमें फेल रहे। हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर्स नहीं जा रहे थे, हेल्थ वर्कर उनसे डिस्टेंस बना रहे थे, एक फियरनेस का जो माहौल था, इसके कारण बहुत लोग हार्ट अटैक से मर गए। દિલવાડાની દિલ્હીના વહીવટકર્તાઓ ઉપર વહીવટનો આરોપ સામાજિક અગ્રણીઓ અને લોકો લગાવી રહ્યા છે। યોગ્ય વહીવટના અભાવે નાગરિકોની સ્થિતિ નરકાગાર જેવી બની છે। દૂરથી રૂપાળી દેખાતી દિલ્હીની હાલત અંદરથી કેવી છે તે બતાવવાનો પ્રયાસ પણ કરીશું। હવે પછીના એપિસોડમાં નાગરિકો શું કહી રહ્યા છે તે પણ બતાવીશું। પરંતુ જે માહોલ અત્યારે દિલ્હીમાં પ્રવર્તી રહ્યો છે તે જોતા એક વાત તો ચોક્કસ છે કે ઉજળું એટલું દૂધ નથી અને પીળું એટલું સોનું નથી। આમ આદમીની વાતો કરનાર લોકો ઉપર ભરોસો મૂકી મતદારોએ જે મોકો આમ આદમી પાર્ટીને આપ્યો છે, પરંતુ આજે દિલ્હીના લોકો પણ કહી રહ્યા છે કે ભરોસાની ભેંસે પાડું જણ્યું છે। આગળના એપિસોડમાં વિસ્તારમાં ફરી લોકોના મુખે લોકોની સમસ્યા જાણવા અને સમજવા પ્રયાસ કરીશું। જોતા રહો અમારી વિશેષ રજૂઆત દિલવાડાની દિલ્હીના હાલ બેહાલ।